بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ کچھ ہل جل سی ہو رہی ہے اور زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی دبئی پہنچ رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب دبئی میں قیام کیا اور دبئی میں آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ زرداری صاحب بالکل ناراض ہو کر اور بلکہ غصے میں کی حالت میں وہ لاہور سے دبئی گئے تھے اور 4 ہفتے وہاں پہ قیام کیا، اور 4 ہفتے کے دوران انہوں نے دبئی میں آخر ایسا کیا ہوا، ان کی کن سے ملاقاتیں ہوئیں کہ معاملات یکدم ان کی فیور میں چلے گئے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کیا نون لیگ ایک بار پھر تیسرے نمبر پہ چلی گئی ہے، اور یہ چیزیں کیا ہونے جا رہی ہیں۔ اس میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کچھ باتیں بتائی ہیں، اب ذرا کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور نواز شریف صاحب دبئی، مریم صاحبہ دبئی، اور پھر وہاں سے سعودی عرب، اور پھر حج، سفر حج، اور اس کے بعد واپس لندن پہنچنا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ 2-3 باتیں آپ کے ساتھ کچھ مختلف ڈاٹس ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے سلسلہ شروع ہوا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوئی پارٹی عہدہ نہیں دیا گیا، اور انہوں نے جو ایک میٹنگ تھی جو آذربائیجان سے شہباز شریف صاحب ایک معاہدہ کر کے آئے مائع گیس کا، LNG کا، تو وہ معاہدہ اس پہ اعتراض تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو۔ انہوں نے ECC کی ممبرشپ سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور پارٹی کا عہدہ ان کو، جو پارٹی الیکشن ہوئے اس میں پارٹی نے فارغ کر دیا مریم صاحبہ، اور وہ سارے کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب صدر بن گئے، مریم صاحبہ کو عہدہ مل گیا، اور باقی اندر ہی اندر اپنی فیملی میں ہی سارے عہدے تقسیم ہو گئے، اور باہر سے کوئی نہیں آیا، لہذا معاملہ ختم۔ اب وہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب فرانس جاتے ہیں، اور اگر فرانس میں ان کی ملاقات باجوہ صاحب سے ہوئی ہے تو پھر تو پتہ چل جائے گا، اور اگر نہیں ہوئی تب بھی فرانس سے وہ پہنچتے ہیں سیدھے لندن، نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے وہ ملاقات بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ آخر ایسی کیا بات بتاتے ہیں کہ کچھ اندر خانے کی۔ فرانس سے کیا وہ میسج لے کے آئے تھے؟ کیا وہ باجوہ صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور یا پھر کسی اور کا میسج انہوں نے نواز شریف صاحب کو پہنچایا؟ خاقان عباسی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں، اور اس دوران کیا ہوا، نواز شریف صاحب خاقان عباسی صاحب کو، اس کے بعد شہباز شریف صاحب پہنچتے ہیں فرانس سے ہو کے، وہ پہنچتے ہیں لندن، اور لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب دبئی کا رخ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ڈاٹس ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی، اور تقریر کر کے انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا، واضح طور پہ سوات میں تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ دھمکی کی دی کھلی کہ ہم بجٹ منظور نہیں کریں گے، ہم بجٹ نہیں منظور کروا سکتے اس حالت میں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے، اور انہوں نے سخت تقریر کی۔ اس کے بعد ندیم افضل چاند آ گئے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس دے ماری، اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد فیصل کریم ٹنڈی انہوں نے بھی کی، وہ بھی مسلم لیگ نواز پہ۔ پھر پیپلز پارٹی پنجاب میدان میں آ گئی، انہوں نے بھی تیر چلائے مسلم لیگ نواز پہ، اور پھر شہباز شریف صاحب اور پھر احسن اقبال صاحب وہ آ گئے ایک دوسرے پہ، انہوں نے بندوقیں تان لیں، اور بندوقیں تاننے کے بعد معاملات گڑبڑی کی طرف جانے شروع ہو گئے، اور پھر اچانک اس کے بعد ہوا یہ کہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات پھر ایک دور ہوا، مذاکرات کا دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور معاملات طے پا گئے۔ ذکا اشرف صاحب PCB کے چیئرمین بن گئے، اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے 30 ارب روپیہ انہوں نے دینا قرار پایا ترقیاتی فنڈ میں، ترقیاتی اسکیموں میں 30 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو دینا قرار پایا۔ اس طریقے سے یہ چیزیں تو ہو گئیں، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ تو لڑائیاں چل رہی تھیں، پھر اچانک ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پھر سیز فائر کروایا گیا، مسلم لیگ نواز نے بھی سیز فائر، پیپلز پارٹی نے بھی سیز فائر کیا، اور زرداری صاحب پھر فوراً پہنچ گئے لاہور، اور لاہور پہنچ کے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس ایک اور دے ماری، اور انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے بڑے بڑے تاجروں سے ملاقات کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بتایا، پچھلا ویلاگ سن لیں، میں بتا دوں گا کہ اس میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہ اس وقت خود ہیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب کی میں بات آپ کو سناتا ہوں کہ
4 दिन पहले 1 हफ्ता पहले वो क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। 1 हफ्ता पहले मुकम्मल तौर पे बजट पे तनकीद कर रहे थे, मुकम्मल तौर पे इसहाक डार साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को कर रहे थे और बजट की अदम मंजूरी का कह रहे थे। अब वो कहते हैं इसहाक डार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलावल साहब कह रहे हैं, और उन्होंने यकीन दिलाया कि फ्लड रिलीफ बजट का हिस्सा होगा, यानी कि 30 अरब रुपया। तो आगे उन्होंने कहा कि वजीर आजम के अपने ही वादे थे जो पूरा होते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में नौजवानों के लिए खुलकर बात करना चाहता हूँ। फिर आगे उन्होंने कहा कि मेरी तरबियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है, बड़ों का एहतराम करना सिखाया है। और आगे वो फरमाते हैं कि डार साहब को मैं बचपन से जानता हूँ, अब डार साहब को मैं बचपन से जानता हूँ और बाकी सब के लिए डार साहब हैं मगर मेरे वो अंकल हैं। अब ये टोन बिल्कुल चेंज हो गई। डार साहब और शहीद मोहतरमा की दुबई में मुलाकात हुई थी, इसके बाद मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। फिर आसिफ जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं, अब वो यारों के यार हो गए और उन्होंने कहा कि यारों के यार हैं तो इसलिए हमारे लिए वक्त का सियासी यार मुस्लिम लीग नवाज है, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा शायद पीपी के वजीर आजम है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है। आप सुनते जाइए कि दिल नहीं मानता। गवाही देता हूँ शहबाज शरीफ के काम का जो तरीकाकार है वो पहले नहीं देखा और अपोजिशन के दिनों में थोड़ा बहुत शहबाज शरीफ को जानता था, अब ज़्यादा जानता हूँ। तो अपोजिशन के दिनों में जब शहबाज शरीफ साहब को जानते थे तो शहबाज शरीफ साहब तो कहते मैं गिरेबान फाड़ के, पेट फाड़ के, घसीट के पैसे निकलवाऊंगा। तो अब उन्होंने कहा कि अपोजिशन के दिनों में थोड़ा बहुत शहबाज शरीफ को जानता था, अब ज़्यादा जानता हूँ। अब ये दो तरह की बातें कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जो हैं। शहबाज शरीफ जिस नीयत से काम करते हैं उसकी गवाही मैं देने को तैयार हूँ। पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है तो दिन रात मेहनत करना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा सोचने वाली बातें हैं। आगे जाके एक और भी आपको मैं बताता हूँ। फिर वो इमरान खान साहब पे आ गए। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि 100% झूठ बोलने का मकसद ये था कि 100% लोग 50% को सच मानने लगेंगे। फिर वो उन्होंने इमरान खान साहब पे बातें करना शुरू कर दी। गुज़श्ता वज़ीर आज़म की सियासत और बयान सब का सब झूठ था, इमरान खान साहब को कह रहे हैं। फिर वो आ जाते हैं जी 25 मई को इस्लामाबाद हमला हुआ था, आग लगाई थी। फिर 25 मई का जिक्र करते हैं। फिर 9 मई का जिक्र करते हैं कि 9 मई को यादगार शोहदा को जलाया गया और उन्होंने जिना हाउस, GHQ, मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए। इस तरह की मिसाइल कभी नहीं मिलती। जबकि पीपल्स पार्टी खुद ये कह चुकी है, BNP मैंगल ये खुद कह चुकी है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। लेकिन अब बिलावल की बिल्कुल टोन ही चेंज हो गई है और सारे का सारा वो अब दूसरे अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ वो बात कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा बताने का मकसद ये था कि आखिर क्या हुआ है इन 2-4 दिनों में कि वो सारे के बिल्कुल 100% यू टर्न लेके, और शहबाज शरीफ साहब भी अच्छे, बजट भी अच्छा, इसहाक डार साहब भी अच्छे और इमरान खान साहब भी बुरे हो गए। तो हुआ क्या है? हुआ ये है जी कि मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। आपको पता है इक़्तिदार और पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज़ है और वो नहीं देखती कि क्या होने जा रहा है। तो लिहाजा आपस में इनकी गेम चल रही है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बार फिर ये इकट्ठे होने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो कुछ गड़बड़ ये है कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जो हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई आशीर्वाद मिली है और वो आशीर्वाद मिलने के बाद पंजाब में वापस आए हैं, लाहौर में वापस आए हैं और अपनी सियासत का आगाज़ वहीं से शुरू किया है जहाँ से वो नाराज़ होकर गए थे। अब क्या हो सकता है? असल मामला ये है कि हो क्या सकता है। नवाज शरीफ साहब आउट हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है, क्योंकि अब दो बातें की जा रही हैं कि इलेक्शन होंगे जी अक्टूबर में। अगर अक्टूबर में इलेक्शन है और उससे पहले भी, क्योंकि अभी तक ये एक दूसरे के साथ टीका जरूर लगाना है। मुस्लिम लीग नवाज कोशिश करे कि जरदारी साहब को टीका लगाए और जरदारी साहब कोशिश करेंगे नून लीग को टीका लगे। उसकी वजह यह है कि असम्बली तोड़ने की तारीख अभी बाकी है कि असम्बली ने कब टूटना है। और मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि डंग टपाओ, बजट मंजूर करवाओ और पीपल्स पार्टी के नाज नखरे बर्दाश्त करें। लेकिन जैसे ही वक्त करीब आए
9-10 तारीख को कोई ना कोई बहाना बना के हम असम्बली तोड़ देंगे और असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करेगी और फिर हम इलेक्शन करवाएंगे नवंबर में, इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होंगे। लेकिन जो ज़बानी गुलामी इनको यकीन दहानी करवाई गई है वो ये है कि जी हम इलेक्शन अक्टूबर में करवा देंगे और वही तारीख है जो 8 अक्टूबर, उसी तारीख को करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन जो तैयारियां कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली भी 8 अक्टूबर को वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन 8 अक्टूबर को इलेक्शन होता है तो उससे पहले इमरान खान साहब का पत्ता कैसे साफ किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता कैसे रोका जाएगा, वो अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। लेकिन ये पिटीशन जो है, जो फौजी अदालतों के खिलाफ जो पिटीशन है वो लेके गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो नामवर वकला। पिटीशन फाइल की है, पिटिशनर हैं चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और उनका मुकदमा लड़ रहे हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा। तो दोनों ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंझे हुए बैट्समैन हैं। और ये कैसे, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब भी यही बात कर रहे हैं, BNP मैंगल भी यही बात कर रही है, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी यही आवाज़ें आ रही हैं कि फ़ौजी अदालतों में ये मुकदमा ना चलाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि सेम पेज पे तो हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है। तो यही है जो इन शॉर्ट जो बात समझ आती है कि चीज़ें जो हैं अभी कुछ संभलने जा रही हैं, कुछ संवरने जा रही हैं और ये कशीदगी ख़त्म होने वाली है और इलेक्शन जो हैं वो सारे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जो इलेक्शन डिले करने का प्रोग्राम था वो डिले नहीं हो रहा और जरदारी साहब को अब कहीं से आशीर्वाद मिली है और वो वापस आके एक्टिव हो गए हैं और वापस आके अपने नंबर अब बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो के जो सर्वे आ रहा है, जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो दूर दूर तक पंजाब में पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती और सिर्फ सिंध में मौजूद है और कहीं एक आध सीट पे जनूबी पंजाब में, इसके अलावा वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है लिहाजा सब कुछ चल रहा है। एक बात बता दूँ कि इस सारे सूरत हाल में जो अच्छी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उमरता बंदयाल साहब, वो कहते हैं कि हम मंगल तक फैसला कर देंगे और मंगल यानी कि ईद से पहले पहले फौजी अदालतों के बारे में। लेकिन वहाँ पे अभी एक और यू टर्न आना है, बहुत ही एक ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से भी एक इत्तला है, वो कब आएगा उसका भी हम आपको बता देंगे। लेकिन मंगल को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जनाब हम फैसला सादर कर देंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और बात की, कल जब वो हेयरिंग मंडे तक मुलतवी हो रही थी तो 3-4 जुमले उन्होंने जाते जाते कहे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। नंबर 1 ये कि अटॉर्नी जनरल से कहा कि वकला और सहाफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, इनको हरासा भी ना किया जाए, इनके काम में रुकावट भी ना की जाए और इनके हकूक़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। और एक बात की दूसरा उन्होंने कहा कि मंगल तक हम फैसला दे देंगे और फिर ये कहा कि हम बहुत जल्द मुल्क में अमन बहाल करना चाहते हैं, आज़ादियाँ बहाल करना चाहते हैं और सुकून बहाल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी वापस आ जाए। इसका मतलब ये है कि इस वक्त के जो हालात हैं वो वाक़तन न अमन वाले हैं, न सुकून वाले हैं, न कुछ और हैं, बल्कि इंतहाई दिगरगूं हालात हैं। तो लिहाजा सहाफ़ियों के लिए, वकला के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो ज़ुबानी अहकाम दिए हैं वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हैं। इस दौरान एक और काम हुआ है, तोशाखाना का मुकदमा जो है वो 4 जुलाई तक खान साहब को मोहलत मिली है कि 4 जुलाई को नैब ने बुलाया था, खान साहब नहीं गए तो उन्होंने कहा जी 4 जुलाई तक आए यानी कि ईद के बाद। फिर एक और भी मामला हुआ है कि जो वो अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस है उसमें मलिक रियाज साहब को भी तलब कर लिया गया है, उनको भी नैब ने तलब कर लिया है। अब उसमें ये अगर मलिक साहब आते हैं और आके क्या बताते हैं, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होगा और मेरा अपना ख्याल है कि अल-कादिर ट्रस्ट के गुब्बारे से भी हवा निकलने वाली है, आज निकले या कल, क्योंकि अब उन्होंने मलिक रियाज साहब को बुला लिया है और मलिक रियाज साहब वहाँ जाके जो स्टेटमेंट देंगे वो कब देंगे ये तो खैर बात की बात है, लेकिन जो देंगे उसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे और फिर अल-कादिर ट्रस्ट भी बंद करना पड़ेगा। अल-कादिर ट्रस्ट रेफरेंस जो है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मामला जो हैं वो किसी और तरफ जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।